if you only want. Yeah, sure. Yeah, Hare Krishna, everyone. So I was telling all of you have joined for a very special session. This is ATW sessions going on. That is academics training workshop. So you will be learning various software, some projects you will be doing, some language and all. So that is very helpful. So I just wanted to address a very beautiful point here. Like you see, all of you are trying to become devotees of Lord. So as a devotees, we all has to be very good actually in our competence also. Like all of you might be remembering now that your session, the three qualities of a true hero, and that was character, competence, and devotion. So if somebody has to become like mini Arjuna, so he should have all the three actually. He should have very good character, and he should have devotion also. So these things will come by chanting Hare Krishna Mahamantra, and also we should be very competent as well. So that will come by studying very nicely and all that. So as devotees, we have to do this workshop also very nicely. So I would request and recommend each one of you that this entire academics training workshop, this ATW, all of you can take very seriously actually. And if you'll do that, then you'll be able to learn very nicely this entire subject of coding and software. So myself and Shubham, we have started our journey in Krishna consciousness from first year itself, and then we became very good friends from second year, like that. So like that, we had spent a very good time there in college. And I have seen Shubham actually. He was very extraordinary into this coding and software, like that. In fact, he used to take while he was in third year and final year, he used to take many classes for his juniors, like first year and second years, like you have no those CC classes and all, like that. So he also used to be a part of that, used to help so many students, and in fact he himself is very expert in that. So all of you, in case you have any question regarding the subject, you can please feel free to ask him. And a part of it, Shubham is a very strong devotee actually. He chants regularly every day this Hare Krishna Mahamantra, and he has read Bhagavad Gita also multiple times. And even his family is also very devotionally inclined. Like his mother, she herself is from Vrindavan, like that. So uh, without much delay, I would like to welcome Shubham among all of us, to help all of us to go through this beautiful journey of ATW. So all of you, please take very good advantage of this. And yeah, definitely, you have any question, please feel free to ask. He's your as good friend as all of us, like that. And yeah, many of you have already attended from him in the SSTW workshop. He has taken one software training workshop for all of you. So, but I think for many of you, you might be learning from him first time. So all the very best. So thank you, Shubham, for taking out your time. Over to you. Thank you. Okay. Yeah, also just one point to mention, Shubham, maybe we can just start with short prayers now, like Om Agyanti Manandasya and just Jai Shri Krishna Chaitanya and Hare Krishna Mahamantra. We'll start with that, no? Okay. Om ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिनिते स्वामिते नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण जय चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभो नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. So welcome all
in this academic training workshop. We will start with a brief introduction to all of you. Then I'll tell something about myself, and then we shall start this academic training. So can you please one by one start putting on your camera and briefly introduce about yourself? I'm seeing on my screen Utkarsh, Ayush, Ritik. So anyone can start, please. Hello, Ayush, sir. My you name can is start. Ayush Mishra. Hello, sir. Yeah, Am I yeah. audible? Yeah. Hello, sir. My name is Ayush Mishra. I am from Electronics and Communication Engineering branch. I live in Badalganj, that is near Gorakhpur in Uttar Pradesh. Okay. Welcome, Ayush. Okay, next. Hello sir, I am Himanshu Shankar Lodha from Jhalawar, Rajasthan. I am from Civil Engineering branch. Okay, welcome, Manchu. Hare Krishna, sir. I'm Hare Shivash Krishna. Jangir, and I'm from Badot, Uttar Pradesh, and my branch is civil engineering. Welcome. Hare Krishna, sir. Myself, Divyanshu Agarwal. I am from Jhansi, Uttar Pradesh, and my branch is Electronics and Communication Engineering. Welcome. Hare Krishna, sir. Myself, Abhishek Agarwal, and I am from Agra, UP, and my branch is Electronics and Communication. Okay. Hare Krishna, sir. My name is Kartikeya Sati. I'm from mechanical engineering department, and I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. Okay. Hare Krishna, sir. I am Karthik Khandelwal from Mathura, and my branch is Computer Science and Engineering. Mathura. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. My name is Nitin Singh, and I am from Jalon, and my branch is CSE. Okay. CSE. Yes. Hare Krishna, sir. My name is Gautam Agrawal, and I am from Jhansi, Uttar Pradesh, and my branch is Information Technology. Okay. Next. Hello, sir. Hare Krishna, sir. I am Sandeep Mishra from Nepal, and my branch is civil engineering. Okay. Hare Krishna, sir. Sir, myself Ashish Rai. I belong from Balia, and my branch is electrical engineering. Okay. Hare Krishna, sir. Am I Hare audible? Krishna. Yeah. You are audible. My name is Abhishek Bhatt, and I'm from Dehradun, Uttarakhand, and I'm from mechanical branch. Okay. Yeah, those remaining can quickly. Hare Krishna, sir. My name is Hare Poonchandra Krishna. Sharma. I'm from Bharatpur, Rajasthan, and my branch is civil engineering. Okay. Hare Krishna, sir. My Hare name is Krishna. Rahul Tosniwal, and I am from CSC. I live in Agra. Okay. I think Amit Kumar, Saurabh Arya, and Utkarsh Sharma शायद नीचे हुए हैं. Hello, sir. My इनमें name से is Saurabh सबको तो मैं Aryan. जानता I हूँ. am from Bharatpur, Rajasthan. Yeah. My branch is East. Okay. Hare Krishna, sir. Hare I am Krishna. Ritik Vadisen from Gaya, Pi department. Thank you. Okay.
Hare Krishna, sir. This is Amit Kumar from EC department. Okay. I think सबका introduction हो गया ना? Actually, it's like from every Hare Krishna, branch sir. My name is Utkarsh Verma. we have students. Hare Krishna. Okay. नेटवर्क की वजह से अगर आपकी वीडियो ओपन नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यूज फेस हो जाते हैं. कोई बात Hare Krishna, sir. जी. Hare Krishna. Hare Krishna, sir. My name is Utkarsh Verma from IT branch, Uttar Pradesh, Firokabad. Okay. Yeah, in fact, Shubham, if you see, many of them are from SSTW workshop also. You have already taught them. Yeah. And many others. And also, I wanted to mention, like, we're thankful to Karthike. So Karthike will be recording all these sessions for all of you, and he will be uploading on our YouTube channel. So our YouTube channel is there, Discover Yourself. So he'll be uploading all the videos there. So in case you want to again go through these videos or something is not clear, you can do that very easily. So thank you so much, Karthike, for taking this, for helping all of us in that. Yeah. Okay. Thank you. So it's like students from every branch and from North India span, Rajasthan to Dehradun and Uttar Pradesh, East, West, South. So it's like complete rainbow. So my name is Shubham Singh, and I've joined MNIT as a BTech graduate in 2015 and completed my BTech in 2019. My branch was information technology, and currently I'm working in Info Edge India Limited, Noida. Might be you have heard of name this Naukri.com, and I'm working there as senior software engineer now. So I joined Voice in the first year of my college, as Akshay mentioned, the in the beginning of second semester, basically. So then after joining, we start with DYS, then Sankalpa, Spurti, then cam by cam, slowly we learn this spiritual knowledge, academic knowledge. And in my experience, what is whatever the spiritual knowledge we have, 1 minute. पापा हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इधर हो जाइए. So basically, sorry for disturbance. Basically, this spiritual knowledge helped me a lot because you guys are not in. I think you have not joined hostel as per now. But जब आप देखेंगे कि hostel में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी एग्जाम्स होते हैं, इट्स लाइक मिड सेम एग्जाम और एंड सेम एग्जाम, या टॉपर्स के लिए हो या बैक बेंचर्स के लिए हुआ, पूरे हॉस्टल में पैनिक रहता है हर समय. चाहे पूरा सेमेस्टर सबने पढ़ा हो, लेकिन पैनिक रहता है. लेकिन ओनली डिवोटीज, द स्पिरिचुअल नॉलेज दैट वी गॉट इन लर्न इन दिस वॉइस, दिस मेड अस लाइक effortlessly doing our exams and studies, and we all have done very good in our studies in our college. So how these spiritual things help us is in every aspect of your life, in your personal life, in your academics, in your professional life. Even after completing my college, when I joined my office in June 2019, even there, when I used to apply the spiritual life and spiritual principle that I've learned in Voice, you might have heard this corporate culture is very hectic or panic situations because tight deadlines and more work and all. But when you are in spirituality and when you have learned these things and you live your spiritual life and doing your activities, it's like a very smooth and fluent, effortless you are doing and managing all the things. So spirituality helps you in every aspect of your life. So
it's very lucky that we were very lucky that we have joined this voice and we have come in contact with devotees in early of our studies. And you guys have also very lucky because in the very beginning phase of your basically now you are exposing to the world basically after coming out of college. So in the very beginning you are coming in the contact of devotees and learning spiritual knowledge and academic knowledge both. So it will be very helpful to all of you. So when we discuss about this academic training workshop, so I planned like this: we shall learn together this web development, how a website can be created from scratch. So there are multiple aspects of a website that need to be constructed, but when I go through these components, how website we can create. So in my time, when I started learning these things in my college, so there are buzz and buzz around because some component of front, some components of backend, multiple technologies comes together to create a website completely. So when you start developing a website and you make a front end, back end, database and all, so I'll tell you what will is the front end or back end and all these things. So don't overwhelmed by these words. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के साथ एक साथ काम करते हैं और पूरे वेबसाइट को डेवलप करने का कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने ही बनाए हुए प्रोजेक्ट में, अपने ही बनाए हुए वेबसाइट में उलझ जाते हैं. आपके लिए आपका ही कोड मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है. और क्योंकि ऐसा होगा कि जब आपकी वेबसाइट धीरे धीरे फीचर ओवरलोडेड हो जाएगी, आप रोज नए फीचर उसमें ऐड करना चाहेंगे, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती जाएगी, तो होता ये है कि आप उस वेबसाइट को फिर बढ़ा नहीं पाते. उसमें चेंजेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ जाते हैं. लेकिन इफ़ यू थिंक ऑफ अ वेबसाइट एंड यू आर रनिंग इट एज ए योर प्रोडक्ट इन अ कंपनी, सपोज you have MNIT की website and people are paying for you to use that website. So what will happen if आपकी वेबसाइट थोड़े टाइम के लिए डाउन हो जाए? अगर आपके कस्टमर्स आपको पे कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के लिए और अगर आपकी वेबसाइट थोड़े टाइम के लिए डाउन हो जाए, तो you will have losses. And industry, it is not good that if you are running an industry, it is not good that you have losses. So basically क्या होता है कि आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री में कि आपका प्रॉफिट बढ़े और उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक आपकी वेबसाइट पहुंचे. लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक आपकी वेबसाइट पहुंचेगी तो कस्टमर फीडबैक से आपको नए नए फीचर्स भी चलेंगे. लोग बोलेंगे कि हमें ये फीचर भी ऐड कर दो, वो फीचर भी ऐड कर दो. और अगर आपने आपकी वेबसाइट को बनाने में ठीक से स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ है, तब फिर उस एंड पर ये होगा कि आप अपनी वेबसाइट में नए फीचर्स ऐड नहीं कर पाएंगे. अगर ऐड कर पाएंगे तो उनको सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे या उन फीचर्स को लगाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट जाएगा. तो मैं पूरे स्ट्रक्चर से देख रहा था कि कैसे हम लोगों ने सीखा था, तब मेरे को पता चला कि जो एक बेसिक चीज़ है जो हम इंडस्ट्री में करते हैं और जब हम कॉलेज में सीखना शुरू करते हैं, उसमें एक चीज़ का डिफरेंस रहता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं. सो व्हेन आई डिस्कस विद डिवोटीज दिस प्रॉब्लम, तो वी गॉट टू नो हमें वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाना है. उनको स्टार्टिंग से ही हम उस फॉर्मेट में वेबसाइट डेवलप करना सिखाएं जिससे जैसे एक्चुअल इंडस्ट्रीज में होता है, जिससे कि आप किसी भी चीज़ की बेसिक चीज़ को ही एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से सीखें. क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएं, तो आपका कोड आपके हाथ में एकदम कंट्रोल में रहना चाहिए. तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो वेब डेवलपमेंट है हम MVC मॉडल का यूज़ करके सीखेंगे.
इस एकेडमिक ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव आपसे कोई बहुत हैवी फीचर लोडेड वेबसाइट बनवाना नहीं होगा, क्योंकि बहुत मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व रहती हैं जो आप ओवर द इयर्स सिलेबस में सीखते हैं, सीसी वर्कशॉप में सीखते हैं, या कुछ लोग अलग अलग वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो उसमें सीखते हैं। तो बहुत मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं एक वेबसाइट के। तो अभी हम बहुत फीचर ओवरलोडेड वेबसाइट की तरफ नहीं जाएंगे, बनाने में बहुत ज़्यादा फीचर्स, लेकिन हम यहाँ से एक बेसिक वेबसाइट, एक बेसिक स्केलेटन बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक वेबसाइट के जो मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सबको इसमें ऐड कर लें, और कैसे आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाए जिसमें फिर आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर करके ही थोड़ा थोड़ा एक एक फीचर ऐड कर करके बढ़ाते जाएंगे। तो आप आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एक बार रेडी हो गया है। सेकंड फैक्ट इज दिस कि इसमें जो कई सारी टेक्नोलॉजीज होंगी वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, साथ में प्रोजेक्ट का हैंड्स ऑन करने की कोशिश करेंगे। जैसे some of you might know in SSTW workshop that we try to do this project and code by ourselves by sharing screen and all. तो हम वैसा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप सबको पर्सनल एक्सपीरियंस रहे कि कैसे आपको कोड लिखना है। इसके अलावा आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे, क्योंकि आप अगर जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। कोडिंग इज लाइक वेब डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज लाइक आपका खुद का हैंड्स ऑन होना चाहिए, आपका हाथ आपके कीबोर्ड पर चलना चाहिए। तो हम वो कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आप भी अपने एंड पर बनाना स्टार्ट करें, देन रिव्यू करेंगे, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करेंगे। तो इस पूरे वर्कशॉप में मेरा आपसे यही होगा कि आप इंटरेक्टिव रहें, जहाँ कहीं पर भी आपको डाउट हो आप पूछें। अगर आप अभी डाउट मिस कर देंगे तो फिर बाद में एक के ऊपर एक जब टेक्नोलॉजीज लेयर होती जाएंगी तब फिर आपके लिए अगर पिछला का कुछ अगर वीक रहेगा तो आपके लिए आगे का समझना मुश्किल होगा। तो आप बेसिक चीज़ों को सीखते चलें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज के लेक्चर से। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि MVC मॉडल क्या होता है। आज हम बेसिकली MVC मॉडल को ही समझेंगे कि क्या होता है। उसके अलावा फिर हम कल से डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे बेसिक टेक्नोलॉजीज के साथ, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो MVC आर्किटेक्चर में MVC का मतलब होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। सो मॉडल, व्यू और कंट्रोलर में जो तीन टर्म हैं, इन्हीं तीन टर्म के ऊपर वेबसाइट रहती है। इसके अलावा हमारे पास क्लाइंट होता है। क्लाइंट इज लाइक यूजर एंड, हम और आप जो जिस वेबसाइट को यूज करते हैं, तो हम और आप जो एंड यूजर्स हैं इन्हें क्लाइंट कहते हैं। और MVC के अलावा यानी मॉडल, व्यू, कंट्रोलर के अलावा एक डेटाबेस होता है जहाँ पर सारा डेटा होता है। तो अभी हम एक एक करके जानेंगे कि मॉडल, व्यू, कंट्रोलर क्या होता है। MVC एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है। आर्किटेक्चरल पैटर्न क्या होते हैं? सबसे पहले पैटर्न क्या होते हैं हम ये जानने की कोशिश करते हैं। पैटर्न इज लाइक अ वे ऑफ डूइंग समथिंग ना। कोई जैसे आप किसी का पढ़ने का एक पैटर्न होता है या और चीज़ों के कुछ पैटर्न रहते हैं, उसी तरीके से MVC एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है। इसके अलावा डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स इज लाइक डिज़ाइनिंग योर कोड, कि आपको कैसे कोड लिखना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखनी है। डिज़ाइन पैटर्न आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग का पार्ट है। वो आपके सिलेबस में भी हैं, आप वो अपने सिलेबस में सीखेंगे जब भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग आपके सिलेबस में आएगा। आर्किटेक्चरल पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न से अलग होते हैं। आर्किटेक्चरल पैटर्न का मतलब ये नहीं कि आप अपने कोड के अंदर कहाँ पे क्या लिखेंगे,
आर्किटेक्चरल पैटर्न का मतलब है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को ही कैसे डिजाइन करेंगे। डिजाइन पैटर्न, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अ बिल्डिंग, तो अगर आप अपने रूम के अंदर डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पर मैं चेयर रखूंगा, कहाँ पर मैं टीवी लगाऊंगा, कहाँ पर बेड लगाऊंगा, कहाँ पर ऑल्टर सेट करेंगे, दिस इज डिजाइन। बट अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा कितना फ्लोर होगा, कौन सा फ्लोर पहले बनेगा, नीचे ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद में उसमें पहले क्या बनाया जाएगा, बाहर गार्डन होगा या नहीं होगा, पार्किंग कहाँ पर होगी, दिस इज आर्किटेक्चर। तो एमबीसी जो है वो आर्किटेक्चरल पैटर्न है। इससे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट जो होगी उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कौन सी चीज़ को आप पहले बनाने वाले हैं, कौन सी चीज़ को आप बाद में बनाने वाले हैं। एमबीसी आपके पूरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, ये केवल वेब डेवलपमेंट में ही नहीं यूज होता, आप इसको वेबसाइट डेवलपमेंट के अलावा वेब एप्लीकेशन में और अपने जो अलग सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह, सब में यूज कर सकते हैं। पूरे आपके सॉफ्टवेयर को ये 3 पार्ट में बांट देता है, विच इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्री यू विल गेट टू नो कि एक पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कोई एक इंसान या एक टीम नहीं होती है। इन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टीम्स होती हैं, एक एक चीज़ पे भी अलग अलग टीम्स काम करती हैं। जैसे कंट्रोलर के लिए हो सकता है 3-4 टीम अलग काम कर रही हों, व्यू के लिए 2-3 टीम अलग काम कर रही हों, एंड्रॉयड के लिए व्यू बनाना है तो अलग, आईफोन के लिए अगर व्यू बनाना है तो अलग, लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए व्यू बनाना है तो अलग, मॉडल के लिए हो सकता है अलग टीम काम कर रही हो, ठीक है, डेटाबेस के लिए हो सकता है अलग टीम काम कर रही हो, तो बहुत सारी टीम्स होती हैं। तो ये एमवीसी आर्किटेक्चर से जब आप सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं तो ये आपके सॉफ्टवेयर को कई पार्ट्स में बहुत क्लियरली बांट देता है। इस वजह से आप अलग अलग टीम को काम असाइन कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग एक साथ जब मिलकर काम करते हैं तो काम जल्दी होता है और अच्छे से होता है। तो एमबीसी में मॉडल, व्यू और कंट्रोलर क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये आपकी मशीन है, यानी आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्लाइंट हैं। इसके अलावा एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, वो बड़ा कंप्यूटर होता है, हैवी उसकी कंप्यूटिंग पावर होती है, तो वो भी एक कंप्यूटर है। आप चाहते हैं कि वहां पर कोई वेबसाइट है या वहां पर कोई कोड है जिसको आप एक्सेस कर लें। सपोज करिए कि www.google.com है और वो एक गूगल के सर्वर पर चल रहा है, मतलब सिलिकॉन वैली में या कैलिफोर्निया में आप मान लीजिए कि वहाँ पर गूगल का अपना एक सर्वर है, उसने खूब बड़ी सी मशीन लगा रखी है, वहाँ उसने अपना google.com कह लीजिए या youtube.com कह लीजिए, यूट्यूब में अपना पूरा कोड लिख रखा है कि भाई मेरी यूट्यूब की वेबसाइट में क्या क्या है, ठीक है, वहाँ पर है और आप यहाँ से हैं, अब आपको वो एक्सेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप जिसको कॉल करते हैं, यानी जैसे आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, वो आपको एक्सेस देने का काम करता है कंट्रोलर। When you type this कि www.google.com या www.youtube.com, that is your, जो आपने ये URL टाइप किया, ठीक है, अगर आप कभी YouTube में आगे देखें तो आप वीडियो अगर कभी सर्च करें तो आपको दिखेगा ऊपर youtube.com/q ? देन कुछ फील्ड्स लिखी रहती हैं, कुछ वैल्यूज लिखी रहती हैं, तो ये आपका कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर आप क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेता है सर्वर के लिए, ठीक है। कंट्रोलर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने YouTube पे कोई वीडियो XYZ देखने के लिए आपने रिक्वेस्ट करी, तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कंट्रोलर को, ठीक है। कंट्रोलर आपकी रिक्वेस्ट तो ले लेता है, लेकिन कंट्रोलर को ये नहीं पता है कि उसको XYZ वीडियो लेनी कैसे है। अब वो XYZ कहाँ पर, XYZ जो आपकी वीडियो है वो कहाँ पर होगी, वो किसी डेटाबेस में स्टोर होगी। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज लाइक स्टोरेज। जैसे आपकी मेमोरी है, आपके फ़ोन में मेमोरी है, या आप मान लीजिए घर में कोई एक कंटेनर ले लीजिए, बड़ा सा बॉक्स ले लीजिए, ठीक है,
एक आप मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें आपकी सारी पढ़ाई की चीजें हैं, आपकी बुक्स भी उसी में हैं, आपकी कॉपी भी उसी में है, नोट्स भी उसी में है, पेन भी उसी में है, सब कुछ उसी में है, ठीक है। तो डेटाबेस इज लाइक कंटेनर जिसमें सब तरह का डेटा है। तो डेटा कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे रखा जाता है, उसकी बेसिक बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डेटाबेस इज लाइक कंटेनर जहाँ पर आपका सारा डेटा है। तो अगर youtube.com के लिए कोई वीडियो है तो वो उसके डेटाबेस में है। अब आपको वो डेटाबेस से वीडियो निकालनी है, लेकिन कंट्रोलर जो होता है उसको केवल उसका काम होता है इस रिक्वेस्ट को देखना कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट की वो उसने ले ली, उसको पता है कि XYZ वीडियो चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि उसको डेटाबेस से कैसे वीडियो निकालनी है। तो कंट्रोलर क्या करता है, वो मॉडल से कम्युनिकेट करता है कि भैया हमको ये XYZ वीडियो हमारे क्लाइंट ने मांगी है और हमें ये XYZ वीडियो दे दीजिए। जब मॉडल डेटाबेस से इंटरेक्ट, मॉडल को कंट्रोलर से रिक्वेस्ट मिलती है कि उसको XYZ वीडियो चाहिए। अब ये मॉडल जो है वो ये जानता है कि उसको डेटाबेस से कैसे वीडियो निकालनी है या डेटाबेस से कैसे डेटा निकालना है। देन ये मॉडल डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है और डेटाबेस से XYZ वीडियो को निकाल कर लेकर आता है। जब मॉडल डेटाबेस से XYZ वीडियो निकाल कर आता है तो ये वापस कंट्रोलर को दे देता है कि लो भैया तुमने ये XYZ वीडियो मांगी थी और ये डेटाबेस से निकाल के मैंने तुम्हें दे दी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे तो कंप्यूटर में कुछ भी चीज ऐसे स्टोर नहीं रहती कि एक वीडियो है वो वहां पे रखी हुई है। कंप्यूटर में तो सब कुछ, सारा डेटा इज लाइक 0 1 फाइल्स एंड इन सब में रहता है। तो अगर आपको पता हो तो वीडियो इज लाइक फ्रेम्स ना, मल्टीपल इमेजेस हैं जिनमें अगर आप 60 FPS आपने टर्म सुना हो कि 60 फ्रेम पर सेकंड से चल रही हैं, यानी बहुत सारी इमेजेस हैं जो जल्दी जल्दी चल रही हैं, तो वो हमें वीडियो की तरह दिखती हैं। अब डेटाबेस में तो वो वैसे स्टोर है और मॉडल ने वहां से निकाल के हमको दे दिया। लेकिन क्या अगर हमको ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस ला के कंट्रोलर दे देगा तो हमें वीडियो नहीं दिखेगी। तो वीडियो हमें कैसे अच्छे से दिखे, कैसे यूजर को, क्लाइंट को समझ में आए, उसके लिए कंट्रोलर क्या करता है कि उस डेटा को वापस से व्यू को दे देता है। व्यू क्या करता है कि जो भी डेटा उसको मिला उसको क्लाइंट को बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से दिखा है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनर में दिखाता है, जिससे कि क्लाइंट को उस डेटा के बारे में समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट में आप सर्च कर रहे हैं किसी अपनी पढ़ाई की चीज़ के बारे में, कोई आर्टिकल के बारे में। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी साइट हैं, एक जो CS और IT से हैं उन्होंने शायद गीक्स फॉर गीक्स का टर्म सुना होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपने जावा पढ़ने के लिए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को जावा पढ़नी है। अब जावा के बारे में जो कुछ भी है वो डेटाबेस में स्टोर है। कंट्रोलर को नहीं पता है कि डेटाबेस से जावा के डिटेल कैसे लानी है। कंट्रोलर ने क्या किया कि उसने मॉडल से कहा कि भैया हमको जावा के बारे में चाहिए, क्लाइंट ने जावा के बारे में रिक्वेस्ट करी है। मॉडल ने डेटाबेस से कहा कि जावा का जो भी डेटा है वो मुझे दे दो। डेटाबेस से मॉडल ने जावा का डेटा निकाला और वापस से कंट्रोलर को दे दिया। अब वो क्या होगा, बहुत सारा टेक्स्ट होगा उसमें, डायग्राम्स होंगे, बहुत सारा टेक्स्ट होगा। अब अगर वो सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं हो, सही तरीके से लिखा नहीं हो, इंट्रोडक्शन जावा का अलग होना चाहिए, बीच में उसके कंपोनेंट्स अलग होने चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, डायग्राम सही जगह पे फिट होने चाहिए, ये सारा डेटा तो मिल गया, लेकिन अगर ये डेटा सही तरीके से दिखा नहीं तो कंट्रोलर आपको जावा का डेटा दे भी दे लेकिन आप उससे सीख नहीं पाएंगे जावा। तब उस एंड पे क्या करता है कंट्रोलर, कि कंट्रोलर को जरूरत होती है कि वो इस डेटा को व्यू को दे दे। व्यू को जब वो डेटा मिल जाता है तब फिर व्यू क्या करता है कि उस डेटा को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में एक बहुत सुंदर तरीके से क्लाइंट को दिखाता है, जिसकी वजह से उसे समझ में आ पाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम अपने काम के बारे में देखें कि क्या है, तो
कंट्रोलर का काम क्या है? कंट्रोलर यूजर से इनपुट लेता है। रिक्वेस्टिंग फॉर जावा इज इनपुट। अगर आप जीमेल के लिए लॉगिन कर रहे हैं, अपना यूजर पासवर्ड डाल रहे हैं, तो वो भी एक तरह का इनपुट है। आपने अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला एंड देन क्लिक किया। तो कंट्रोलर का काम होता है कि वो यूजर से इनपुट लेता है, उसकी रिक्वेस्ट को लेता है। अगर आप हमेशा वेब डेवलपमेंट के टर्म में बात करेंगे तो हमेशा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, इसको रिक्वेस्ट ही बोला जाता है, HTTP रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, कुछ गेट की रिक्वेस्ट होती हैं, कुछ पोस्ट की रिक्वेस्ट होती हैं, पोस्ट डिलीट बहुत सारी रहती हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो बेसिकली क्लाइंट हमेशा कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करता है इनपुट पैरामीटर्स के थ्रू, ठीक है। कंट्रोलर उसके अलावा क्या करता है कि उन इनपुट पैरामीटर से लेके मॉडल और व्यू के साथ इंटरेक्ट करता है। मॉडल से वो डेटा मांगता है जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट रहती है उसके लिए, एंड उसको जब मॉडल से रिस्पॉन्स मिल जाता है तो उसको इंटरेक्ट करता है, अब इसको क्लाइंट को, ठीक है। मॉडल का काम क्या होता है कि मॉडल को ये पता है कि डेटाबेस से डेटा कैसे निकालना है, और केवल डेटाबेस से डेटा निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डेटा के ऊपर कई बार प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है। जैसे सपोज करिए कि आपका अकाउंट है जीमेल पर और आपने कंट्रोलर को अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया इनपुट के तौर पर, और कंट्रोलर ने क्या किया कि मॉडल से इंटरेक्ट किया कि भैया इसका जीमेल अकाउंट खोल लो। अब मॉडल को ये चेक करना भी तो जरूरी है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही है या नहीं है। तो अभी होगा क्या, अगर आप जीमेल का सिचुएशन लें तो क्या होगा? सबसे पहले आपने यूजर नेम वर्ड यहाँ पे डाला कंट्रोलर को, ठीक है। कंट्रोलर के बाद कंट्रोलर ने वो यूजर नेम और पासवर्ड मॉडल को भेजा। मॉडल ने सबसे पहले चेक किया कि क्या यूजर नेम और पासवर्ड जो है इसका अकाउंट मेरे पास है। अब क्या उसके पास वो डिटेल्स है, तब तो वो आपको यहाँ से आपका अकाउंट निकाल के भेजेगा कि आपके जीमेल जो है वो ओपन कर दे। अगर आपके पास आपका अकाउंट जो है वो डेटाबेस में नहीं है या आपने पासवर्ड गलत डाला है, तो भी एक जीमेल का पेज खुलकर आता है जहाँ पर लिखा रहता है कि आपका पासवर्ड गलत है। तो ये सारा लॉजिक लगाना कि जो डेटा है वो सही है या नहीं, मैच किया है या नहीं, कितना आपको दिखाना है कितना नहीं दिखाना है, ये सारा लॉजिक लगाना, डेटाबेस से डेटा निकालना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मॉडल है। मॉडल जब ये डेटा निकाल देता है और लॉजिक लगा लेता है तो ये वापस से कंट्रोलर को दे देता है, और कंट्रोलर जब ये डेटा व्यू को दे देता है तो व्यू वो है जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। व्यू है वो जो आप यूजर इंटरफेस है। अगर जीमेल में जो आपका कलर आ रहा है, जीमेल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जीमेल का एक जो साइन इन का बटन है, साइन अप का बटन है, लॉग इन करने का बटन है, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये व्यू है, ठीक है। तो जब इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी है। व्यू बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी यूज में आती हैं, लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजी है जो हमेशा रेलिवेंट रहेगी वो ये है कि आप व्यू का एक स्केलेटन बनाएं। सबसे पहले आप स्केलेटन बनाते हैं किसी वेबसाइट का, और उसके बाद फिर उसको आप डेकोरेट करना शुरू करते हैं, उसमें कलर्स ऐड करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाते हैं। जैसे अगर आप में से किसी ने फेसबुक यूज़ करी हो कभी, और अगर आप में से किसी ने कभी फेस किया हो कि कभी कभी जब इंटरनेट डाउन होता है तो फेसबुक का बहुत गंदा सा पेज खुल के आता है, मतलब उसमें लाइन लाइन टाइप का बना रहेगा, मतलब जितना डेकोरेटेड रहता है वैसा नहीं आएगा, बस नॉर्मल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लिखी रहती हैं। तो वो जो बेसिक स्केलेटन है, कभी कभी जब इंटरनेट डाउन होता है तो केवल स्केलेटन ही आपके मशीन पर आ पाता है, बाकी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो वो स्केलेटन हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे कि कैसे वो स्केलेटन बनाया जाता है व्यू का। फिर उसके ऊपर हम जानेंगे कि ये स्केलेटन बनाने के लिए आपको बेसिकली दो टेक्नोलॉजीज HTML एंड CSS, इन दो टेक्नोलॉजीज का यूज होगा। इसके अलावा बूटस्ट्रैप एक टेक्नोलॉजी होती है
जिसका यूज किया जा सकता है आपके व्यू को सुंदर बनाने के लिए। और अभी अगर आप देखेंगे तो रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस ये भी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेवल की और बात की चीज़ें, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जान चुके होते हैं, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, मल्टीपल चीज़ जान सकते हैं, तब आप वो सीखते हैं। बेसिक चीज़ें ये है कि आप स्केलेटन बनाना सीखें विच इज़ HTML, CSS जो आपका दिखेगा। उसके अलावा एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज यूज होती है विच इज़ कॉल्ड जावास्क्रिप्ट एंड jQuery. jQuery is part of JavaScript. तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, वो यूज की जाती है फ्रंट एंड को अच्छा बनाने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए, एज वेल एज उस फ्रंट एंड का बैक एंड से अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करवाने के लिए। तो हम जब व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम HTML सीखेंगे, CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट के कुछ फंडामेंटल सीखेंगे, कैसे जावास्क्रिप्ट के साथ काम किया जाता है। उसके अलावा जब हम कंट्रोलर और मॉडल की बात करेंगे तो कंट्रोलर और मॉडल बनाने के लिए हम एक इस फ्रेमवर्क यूज करेंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क कहते हैं उसे। वो जावा में कोड करने के लिए, वैसे तो किसी भी लैंग्वेज फ्रेमवर्क है तो कोड मैनेज करने के काम आता है, लेकिन बेसिकली जो हमारा कोड होगा वो जावा लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो जिन्होंने जावा पढ़ी है वो बेटर रहेगा कि अपने फ्री टाइम में थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी अगर उसका थोड़ा सा फंडामेंटल गीक्स फॉर गीक्स से या जावा टी पॉइंट एक साइट है, अगर वहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे तो उनको हेल्पफुल रहेगा वो। तो हम ये कंट्रोलर और मॉडल स्प्रिंग बूट और जावा में बनाना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि कैसे क्लाइंट से रिक्वेस्ट करी जाती है, किस केस में कौन सी रिक्वेस्ट की जाती है। अगर आपको वीडियो मांगनी है या अगर आपको जावा का डेटा मांगना है तो वो कैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको अपना लॉगिन और पासवर्ड मांगना है तो आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे अगर आपको अपना अकाउंट बनवाना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। HTML रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोलर और मॉडल का कोड कैसे बनाया जाता है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में, डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में हम लोग डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है कि डेटाबेस का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसमें कैसे कैसे बनती है। लेकिन हम उसमें भी फंडामेंटल जो हमारी इंटरेक्ट करने का तरीका है, टेबल्स बनाने का, उस कि वहाँ पर डेटा स्टोर कैसे कराना है, वहाँ से डेटा निकालना है तो कैसे निकालना है, वहाँ से डेटा डिलीट करना है तो कैसे करना है, फंडामेंटल हम उसका भी सीखने की कोशिश करेंगे, जो भी बेसिक चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा इन द एंड ऑफ द वर्कशॉप यू विल हैव अ बेसिक इंटरेक्टिव वेबसाइट जहां पर जितने भी फंडामेंटल कंपोनेंट्स होंगे वो आपकी एक वेबसाइट के पूरे तरीके से बने हुए होंगे। आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ लीजिए। जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को होना चाहिए, सारे लोगों को कुछ ना कुछ डाउट। फील फ्री टू आस्क, क्योंकि अगर आप अभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये भी आपको लग रहा होगा कि ये आर्किटेक्चरल पैटर्न है, लेकिन आप जब डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तब आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज कंट्रोलर। अब मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ तो ये क्या कर रहा होगा, अब मैं मॉडल बना रहा हूँ तो ये क्या कर रहा होगा, अब मैं व्यू बना रहा हूँ तो ये क्या कर रहा होगा। मतलब आपके दिमाग में एक बर्ड आई व्यू हमेशा रहना चाहिए जब आप कोड बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि मैं ये जो चीज़ बना रहा हूँ ये मेरे प्रोजेक्ट में कहाँ जाकर फिट होगी और क्या काम करेगी, ठीक है। तो आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। और अगर सबको क्लियर है तो वो भी बता दीजिए। सर मॉडल को Yes, sir. जी, एक आप अपना कैमरा ऑन करके मेरे को बताइए जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन बात कर रहा है। हाँ बताइए नितिन। सर मॉडल को सर फिर से एलैबोरेट कर दीजिए। हाँ हाँ,
आप समझिए कि अगर आप किसी बैंक की वेबसाइट लीजिए, ठीक है, और आपने उस बैंक की वेबसाइट के लिए आपने उससे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को 1 लाख रुपए मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। मान लीजिए कि आपका आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट था और एक स्टेट बैंक का अकाउंट है। आपने आईसीआईसीआई बैंक वाले अकाउंट पे गए और रिक्वेस्ट डाली कि 1 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर दो, और आपके अकाउंट में केवल 50,000 रुपए थे, ठीक है। आपको पता है, लेकिन आपने आईसीआईसीआई बैंक पे रिक्वेस्ट डाली, यानी आपने कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, ठीक है। कंट्रोलर ने मॉडल को आपकी रिक्वेस्ट भेज दी कि भाई क्लाइंट जो है, ये वाला क्लाइंट है, नितेंद्र क्लाइंट है, और इन्होंने अपने अकाउंट से बोला है कि 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो इस अकाउंट में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अब सबसे पहले मॉडल, भाई मॉडल तो वेबसाइट है, ठीक है, उस पे तो हजारों लाखों यूजर हैं। नितेंद्र का अकाउंट, उस अकाउंट की डिटेल्स, ठीक है, उसमें जितना भी बैलेंस है वो सारा तो डेटाबेस में होगा। जब कंट्रोलर ने आपकी रिक्वेस्ट मॉडल को भेजी, तब मॉडल ने सबसे पहले आपके जो भी क्रेडेंशियल्स थे, नेट बैंकिंग के या जो भी थे, ठीक है, उसने डेटाबेस से मांगा कि भैया ये नितेंद्र का एक अकाउंट है, जरा तुम्हारे पास है क्या। सबसे पहले तो डेटाबेस ने, अगर डेटाबेस के पास नितेंद्र का अकाउंट है तो डेटाबेस मॉडल को बता देगा कि ये रहा नितेंद्र का अकाउंट, ठीक है। अब मॉडल को सबसे पहले तो ये पता चल गया कि नितेंद्र का अकाउंट है। अब फिर उसने वापस से डेटाबेस से पूछा, अभी कंट्रोलर के पास वापस नहीं गया है, अभी यहीं पे लॉजिक चल रहा है, विच इज वी वर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिंग बिजनेस लॉजिक, ठीक है। तो सबसे पहले उसने चेक किया कि नितेंद्र का अकाउंट है या नहीं है। जब उसको ये पता चल गया कि हाँ भाई अकाउंट है, तो उसने उससे पूछा कि इनका 1 लाख रुपए जो है वो इनके पास 1 लाख रुपए है, वो मेरे को डेटा दे दो। अब जैसे उसने यहाँ से रुपए मांगे 1 लाख, अब डेटाबेस में तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हुए थे, तो आप क्या करेंगे कि मॉडल को जैसे ही यहाँ पे मिला कि 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, तब वो चेक करेगा ना कि आपने तो कहा था 1 लाख ट्रांसफर कर दो और आपके अकाउंट में तो 50,000 है, वो ट्रांसफर तो कर नहीं सकता है। तो अब आइडियली क्या होगा कि अब उसको बताना पड़ेगा आपको कि भैया आपके अकाउंट में तो इतना बैलेंस ही नहीं है, इनसफिशियंट बैलेंस है। तो ये सारा लॉजिक लगाना, आप देख रहे हैं कि मॉडल लॉजिक लगा रहा है कि आपका अकाउंट है या नहीं है, आपने जितने अमाउंट की रिक्वेस्ट करी है उतना अमाउंट है या नहीं है। तो ये बिजनेस लॉजिक, इसको बिजनेस लॉजिक बोला जाता है। ये सारा लॉजिक का जितना भी पार्ट होता है, जितना भी कोड होता है, वो हम मॉडल में लिखते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये लॉजिक लगाने के लिए जिस डेटा पर लॉजिक लगा रहा है, वो डेटा ये डेटाबेस से निकाल के ला रहा है। तो मॉडल ही है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करना जानता है, इसलिए डेटाबेस से डेटा निकालना और वो लॉजिक लगाना, ये मॉडल का काम रहता है। ये सारा कोड जिसमें हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करना और ये सारे लॉजिक लगाना, ये सब हम मॉडल के अंदर लिखते हैं। देन फिर ये मॉडल क्या करता है कि कंट्रोलर को भेज देगा आपकी रिक्वेस्ट कि इनके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, और वो फिर कंट्रोलर व्यू को भेज देगा कि भैया रेड में ऐसे ब्लिंक करता हुआ दिखाओ कि इनके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, जिससे इनको एक अलर्ट टाइप का मिल जाए कि कितना अमाउंट मांग लिया, इतना अकाउंट तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है। अभी क्लियर हुआ आपको? यस सर। एनीबॉडी? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये डेटाबेस में डेटा पहले आए कहाँ से? हमें पहले डेटाबेस बना तो उसमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा क्या? जी, एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो देखिए, वेबसाइट में आप देखेंगे MVC आर्किटेक्चर में वेबसाइट आपकी केवल इतनी है जो सर्वर के अंदर है, M, B एंड C, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। क्लाइंट टाइप की वेबसाइट के बाहर है, डेटाबेस आपकी वेबसाइट के बाहर है, ठीक है। डेटाबेस में डेटा आपको पहले से भी डालना पड़ सकता है, और डेटाबेस में डेटा आपकी वेबसाइट पे जब क्लाइंट इंटरेक्ट करता है तब धीरे धीरे वैसे भी जाना स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर आपने
अपना मेल की कोई वेबसाइट बनाई, जैसे मान लीजिए आपने अपना खुद का जीमेल बनाया, ठीक है, जीमेल की पूरी साइट बनाई, तो अब आप अगर अपनी जीमेल की साइट बनाएंगे तो आप वहाँ पर क्या रखेंगे? कोई डेटा नहीं होगा। लेकिन आप क्या करेंगे, जो आपका सबसे पहला यूजर होगा वो क्या करेगा, वो लॉगिन नहीं करेगा, वो साइन अप करेगा, वो अपना अकाउंट बनाएगा। तो आपका उसमें नाम डालेंगे, वो अपना नाम डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, फोन नंबर डालेगा, पासवर्ड डालेगा, ठीक है। वो सारा डेटा आप लेके डेटाबेस में सेव करा लेंगे। जब डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा और अगली बार वो जब लॉगिन करेगा तब फिर आप वो डेटा उसको देना शुरू करेंगे और उसके जो भी मेल हैं वो आना शुरू होंगे, तो वो उसको दिखने शुरू होंगे। तो एक तरीका तो ये होता है कि जैसे जैसे यूजर इंटरेक्ट करता जाता है वैसे वैसे आपके डेटा डेटाबेस में आता जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यूजर को आपको यूजर स्पेसिफिक डेटा नहीं दिखाना होता, जनरल डेटा दिखाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गीक्स फॉर गीक्स है, ठीक है, या आपकी कोई एकेडमिक साइट है जहाँ से आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो अब वहाँ पर क्या होगा कि आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे जावा उस साइट पे दिखाई जाएगी वही आपको दिखाई जानी चाहिए, जो मुझे वहाँ पर HTML CSS दिखाई जानी चाहिए वही आपको दिखाई जानी चाहिए। तो क्या होगा कि जो उस साइट को बनाने वाली कंपनी है वो क्या करेगी कि उससे रिलेटेड डेटा अपने डेटा में पहले से स्टोर करा लेगी, और कंट्रोलर इस तरीके से बना देगी कि जब भी कोई जावा की या HTML की रिक्वेस्ट मांगे तो जावा का डेटा निकाल के उसे दे दो, और HTML की रिक्वेस्ट मांगे तो HTML की रिक्वेस्ट बना के दे दो। तो डेटाबेस में डेटा रन टाइम पर भी, यानी आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाने के बाद, ठीक है, जब यूजर उसको स्टार्ट करना शुरू करते हैं तब भी आना स्टार्ट हो सकता है। कुछ डेटा आपको पहले से बनाकर भी रखना पड़ सकता है, दोनों ही चीजें रहती हैं। लेकिन डेटाबेस अपने आप में पूरा एक डिजाइन का सिस्टम रहता है, उसको आपके में पूरा एक सब्जेक्ट होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज कॉल्ड DBMS, जहाँ पर डेटाबेस को कैसे डिजाइन किया जाता है। क्योंकि जब लाखों करोड़ों लोग आपके वेबसाइट पर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपका डेटाबेस को बहुत जल्दी डेटा सर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि एक बार में एक मॉडल आपका मांगेगा, एक साथ करोड़ों रिक्वेस्ट आपके डेटाबेस पे आएंगे और वो अलग अलग जाके मॉडल पे सर्व होंगी। तो आपका डेटाबेस कैसे जल्दी से जल्दी डेटा दे, ठीक है, वो पूरा एक अलग डिजाइनिंग का पार्ट है कि कैसे अपने डेटा को बनाएंगे। हम यहाँ पे RDBMS जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू डेटाबेस बनाएंगे। DBMS अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है और काफ़ी डिटेल सब्जेक्ट है जो आप अपने सिलेबस में कवर करेंगे। अभी समझ में आया आपको? यस सर, अभी आया। एनीबडी एल्स? सर फिर तो हमें डेटाबेस पहले बनाना पड़ेगा। जी, आपको डेटाबेस में कैसे स्टोर कराना है वो आपको पहले बनाना पड़ेगा। यानी कि जब आप अपना वेबसाइट डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे तो हम शुरू में व्यू बनाएंगे सबसे पहले, जब हम सीखना शुरू करेंगे, जिससे कि आपको दिखने लगे कि हाँ मेरी वेबसाइट कैसी बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले डेटाबेस ही बनाएंगे कि डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स रहेंगी। टेबल्स में इसलिए आप टेबल्स क्या है और ये सब क्या है हम जानेंगे, कैसे सेव होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा। तो हम वहाँ पे टेबल बनाएंगे, कैसे उनमें अलग कौन कौन से कॉलम रहेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, डेटा टाइप कौन सा रहेगा, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। फिर हम जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है विच इज़ डिजाइनिंग ऑफ योर मॉडल, क्योंकि उसी पर सब कुछ डिपेंड है, कंट्रोलर एंड मॉडल। कंट्रोलर पर आपकी रिक्वेस्ट आएगी एंड मॉडल जो आपका बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा। सबसे लास्ट में हम उस पर काम करना शुरू करेंगे विच विल टेक टाइम, क्योंकि अलग अलग फीचर्स के साथ आप उसको इंटरेक्ट करेंगे। कंपनीज में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जो मॉडल और कंट्रोलर बनाने की टीम रहती है वो बड़ी टीम रहती हैं, और जो व्यू बनाने की टीम है वो छोटी टीम रहती है रिलेटिवली बैकएंड के। और आप अगर देखेंगे तो इसको बोला जाता है, जो कंट्रोलर और मॉडल होता है इसको बैकएंड बोला जाता है, ठीक है। एंड व्यू इज योर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इज क्लाइंट के फ्रंट पर आने वाला, ठीक है। तो जो क्लाइंट को दिख रहा है वो फ्रंट एंड है,
जो उस वेबसाइट के बैकग्राउंड में चल रहा है वो बैकएंड है, ठीक है। तो हम शुरू में ही जो डेटाबेस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे ये व्यू बनाने के बाद। हाँ दिव्यांशु बताइए। सर डिजाइन पैटर्न आर्किटेक्चर पैटर्न से अलग कैसे है? मींस डिजाइन में क्या होता है ऐसा, लाइक आर्किटेक्चर में तो ये MVC तीनों चीजें, लाइक डिजाइन में ऐसा क्या नहीं होता या क्या होता है? ठीक है, डिजाइन इज लाइक कि आप अपना कोड किस तरीके से लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर कभी कोई प्रोग्रामिंग अगर किसी ने बेसिक प्रोग्रामिंग भी करी हो, तो उसमें आप अपने कोड को किस तरीके से लिख रहे हैं, ऊपर क्या चीज लिख रहे हैं, बीच में क्या लिख रहे हैं, नीचे क्या लिख रहे हैं, ठीक है। कोड को डिजाइन करना अंदर से भी बहुत जरूरी होता है। मतलब दो चीजें हैं, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें। पहले हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको कोड में एक्सप्लेन करके देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको घर बनाना है, ठीक है। तो अब घर बनाने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। एक होगा कि घर बाहर से कैसा दिखेगा, ठीक है। घर की बेसिक फंक्शनैलिटीज क्या क्या होंगी, घर में बाथरूम होना चाहिए, घर में पार्किंग होनी चाहिए, ठीक है, घर में किचन होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको घर बनाना होता है तो किसी आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करते हैं। वो आर्किटेक्ट आपको एक मैप बना कर देता है, वो आपसे पैसे लेता है, आपको मैप बना कर देता है। जो सिविल इंजीनियरिंग से हैं उनके लिए तो ये मतलब काम जैसी चीज़ है कि ये वो जो आर्किटेक्ट होते हैं और सिविल इंजीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जो सिविल इंजीनियर होता है फिर वो उस आर्किटेक्ट के बनाए हुए मैप के अकॉर्डिंग आपका घर बनाना शुरू करता है। तो आर्किटेक्चरल पैटर्न इज लाइक दैट कि ना आपके जो वेबसाइट है या आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उसमें मॉडल भी होगा, उसमें व्यू भी होगा, उसमें कंट्रोलर भी होगा, ठीक है। अब लेकिन जब आपका डिजाइन बन गया घर का कि आपका किचन होगा कहाँ पर होगा और आपका बाथरूम होगा, पार्किंग होगा, ठीक है, घर किस शेप में बनेगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, लेंथ हाइट विड्थ सब उसका डिसाइड हो गया। लेकिन जब आपका घर बनना शुरू होता है तब उसके बाद फिर जब आपका एक एक रूम बनने लगता है तो फिर उस रूम के अंदर भी आप चाहते हैं ना कि सब जगह पे फिर एक इंटीरियर डिजाइनर्स आते हैं, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर्स आर लाइक के आपके घर में गेट कहाँ पर लगेगा। अब आपका रूम बन गया, ठीक है, पर उस रूम में गेट कहाँ पर लगेगा, विंडो कहाँ पर लगेगी, किचन में जो आपके कैबिनेट्स होते हैं सामान रखने के लिए वो कहाँ पर होंगे, ठीक है, आपका बाथरूम में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको घर में टीवी लगानी है तो कहाँ पर लगाई जानी चाहिए, जिससे कि आप बहुत फ्लुएंटली चीज़ों को एक्सेस कर सकें और किसी को भी अगर कोई नया बंदा भी घर में आए, कोई गेस्ट भी आ जाए तो उसको भी समझने में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। अगर उसको कोई सामान चाहिए तो वो आसानी से मिल जाए आपके घर में, अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है और आप उसको अलाउ करते हैं लेने के लिए। तो उसी तरीके से जब आप आर्किटेक्चरल पैटर्न आपको ये बताता है कि आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, कैसे आपका यूजर से इंटरेक्शन होगा, कैसे आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे, कैसे मॉडल और कंट्रोलर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कैसे कंट्रोलर व्यू से इंटरेक्ट करेगा, कैसे मॉडल डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, कंट्रोलर कैसे बनेगा, मॉडल कैसे बनेगा, व्यू कैसे बनेगा। दिस इज आर्किटेक्चर, ठीक है। कंपनीज में भी अगर आप देखें तो एक पोजीशन होती है विच इज कॉल्ड टेक्निकल आर्किटेक्ट। टेक्निकल आर्किटेक्ट और सीनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट की कंपनीज में पोजीशन होती हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसा होगा। देन फिर डेवलपमेंट की टीम्स होती हैं या इंजीनियर्स की टीम होती हैं जो उस डेवलपमेंट को बनाती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम घर की तरीके जैसे कि आप आर्किटेक्ट होता है वो आपका मैप बना के देगा, देन सिविल इंजीनियर उसके ऊपर घर बनाएंगे, ठीक है, या घर बनवाएंगे।
उसी तरीके से कंपनीज में भी आर्किटेक्ट जो होता है वो, आप टेक्निकल आर्किटेक्ट जो होता है वो आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर से ज्यादा कहेंगे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बनाता है, और फिर इंजीनियर्स की टीम उस पर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करती है। जब आपको ये पता है कि आपके पास कंट्रोलर भी है, आपके पास मॉडल भी है, आपके पास व्यू भी है, व्यू का काम आप दूसरी टीम को दे दिया, मॉडल का काम आपने मॉडल बनाने वाली टीम को दे दिया, ठीक है, कंट्रोलर का काम आपने कंट्रोलर बनाने वाली टीम को जब दे दिया, तो अब जब वो बनाएंगे तो उसमें वो कोड को किस तरीके से लिखें कि जब एक टीम में वो काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 या 20 लोगों की टीम है और एक ही मॉडल पे वो काम कर रहे हैं, एक ही वेबसाइट बना रहे हैं, तो अगर कोड एक प्रॉपर डिजाइन में नहीं लिखा जाएगा, मान लीजिए मैंने कुछ लिख दिया अपनी मर्जी से, सामने वाले ने लिख दिया अपनी मर्जी से, 20 लोगों ने 20 तरीके से अपना कोड एक ही मॉडल का लिख दिया, ठीक है, उनको जो जो काम करने को मिला था उन्होंने अपना अपना काम लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक नया 21वां बंदा आता है टीम में, वेबसाइट बड़ी थी उसको बनाना था, तो हमको और लोग हायर करने पड़े और आए। अब उनको तो पहले ये समझना पड़ेगा ना कि ये 20 लोगों का जो काम कर लिया है, इन्होंने क्या क्या चीजें बना दी हैं और अब मुझको क्या बनाना है। लेकिन अगर 20 लोगों ने 20 तरीके से कोड लिखा होगा तो वो जो नए बंदे हैं वो आपका कोड समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो वो ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें एरर्स होंगी, और अगर कोड में एरर्स होंगी तो उनको सुधारने में टाइम जाएगा, उनको ठीक करने में सबसे पहले तो उनको ढूंढने बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। एरर्स को ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है, तो एरर्स को ढूंढने में बहुत टाइम जाएगा, फिर उनको ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब आर्किटेक्ट ने आपका आर्किटेक्चर बना दिया कोड का, तो जो आपके सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बना दिया, उसके बाद जब आप अपना कोड लिखना शुरू करें तो उस कोड को भी एक प्रॉपर डिज़ाइन में लिखना होता है, जिसकी वजह से वो कोड एक्सटेंडेबल हो, यानी कि अगर हमको उसमें कल और फीचर्स लगाने हैं तो आसानी से लगाए जा सकें। पॉइंट नंबर 1, मेंटेनेबल हो, यानी कि अगर हमको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, एग्जिस्टिंग कोड में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो वो आसानी से किए जा सके। अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि अगर कोई नया बंदा टीम में आता है तो उसको बहुत आसानी से समझ में आ सके। इसलिए कंपनीज में कोड को लिखने के लिए एक प्रॉपर डिज़ाइन को फॉलो किया जाता है। अलग अलग यूज केस के लिए अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न रहते हैं, 15-16 तरीके के डिज़ाइन पैटर्न हैं शायद, जो गैंग ऑफ 4 करके साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाए थे, और वो डिज़ाइन पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्ट का काम पूरे ओवरऑल आर्किटेक्चर को बनाना रहता है, और इस तरीके से कंप्लीट वेबसाइट बनती है कि अलग अलग टीम को अलग अलग कंपोनेंट भी बढ़ जाएं, और फिर अलग अलग कंपोनेंट के अंदर जब कोड वाला पार्ट आएगा तब फिर वो टीम एक डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो इट्स लाइक अलग अलग लेवल हैं। एक है पूरी वेबसाइट को, एक बंदा आर्किटेक्ट यानी पूरी वेबसाइट को ओवरऑल देख रहा है, ठीक है, और फिर उसमें जब डिग डाउन करेंगे तो अंदर जब कोड लिखा जा रहा है तो वहां पर एक और डिजाइन चल रही है, ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न इज लाइक डिजाइनिंग योर कोड, आर्किटेक्चर पैटर्न इज लाइक डिजाइनिंग योर सॉफ्टवेयर, कंप्लीट सॉफ्टवेयर। समझ में आया आपको? यस सर, थैंक यू सर। और कोई किसी को डाउट? नो सर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सारे टर्म से अवेयर हैं, कि उनको HTML या CSS के बारे में थोड़ा बहुत पता हो? हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं। सर स्कूल में HTML थोड़ा सा पढ़ाया गया था, तो सर उससे आता है थोड़ा। हाँ, तो ये अच्छी चीज है कि आपको ये सर HTML लिंक वगैरह इंसर्ट करने तक, वहां तक सर आता है। तो बेसिक चीजें ही हैं। हम HTML, CSS इन सब में कम टाइम देके जल्दी से चीजें चलाएंगे, क्योंकि ये आप आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप लोग उसको बनाएं, ठीक है। और आपका ये वर्कशॉप कब तक है? शायद 4 वीक है। डेट बता सकते हैं आप में से कोई? जून में कोई डेट थी शायद। सर 13 जून तक छुट्टियां हैं हमारी, तो उस हिसाब से ओके,
13 जून तक, यानी कि मेरे पास 1 2 3 3 6 3 9, ठीक है, मतलब लगभग अपने पास मतलब रहेंगे 4-5 वीक रहेंगे अपने पास। तो कोशिश करेंगे कि पहले हम एक बेसिक वेबसाइट बना लें, ठीक है। अगर बेसिक वेबसाइट हम टाइम पर कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम उसमें धीरे धीरे और फीचर्स ऐड करते जाएंगे और उसको कॉम्प्लेक्स या थोड़ा सा बड़ा बनाते जाएंगे। बेसिक वेबसाइट अभी जो मैंने सोची है वो ये है कि एक टीचर स्टूडेंट पोर्टल टाइप का है, जो आपके जैसे अगर आप में से शायद अब बीटेक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है क्या, फर्स्ट सेमेस्टर का? नो सर, नो सर, अभी हाँ, तो सर आपकी अभी जो आपकी डीन एकेडमी की साइट है उसमें आप जब अपना लॉगिन करते हैं, ठीक है, और फिर लॉगिन करने के बाद आप उसमें अपना रिजल्ट देख पाते हैं, ठीक है। तो हम भी उस पूरी वेबसाइट का बस वो कंपोनेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि एक टीचर स्टूडेंट पोर्टल हो जहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉगिन कर सकें और अपने मार्क्स देख सकें। इसके अलावा वो अगर किसी मार्क्स में, किसी सब्जेक्ट के मार्क्स में उन्हें प्रॉब्लम है तो वो उनको रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर उनके मार्क्स सही हैं तो वो सबमिट कर सकें। अगर उनकी क्लास में कोई रैंक आई है, उनके बैच में कोई रैंक आई है तो वो रैंक उनको दिख सके, ठीक है। इसके अलावा हम ये बनाने की कोशिश करेंगे कि टीचर एंड पे टीचर लॉगिन कर सकें, ठीक है, और टीचर साइन अप कर सके, स्टूडेंट साइन अप कर सके, और टीचर्स यूजर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स अपलोड कर सकें। अगर जो स्टूडेंट्स की रिव्यू रिक्वेस्ट आई है उन रिव्यू रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, अपडेट करने हैं मार्क्स, वो कर सके, ठीक है। ये हम बेसिक फीचर्स की एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे और अगर ये वेबसाइट टाइम पर कंप्लीट हो जाती है तब फिर हम इसमें और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जहां एक सेमेस्टर के नहीं मल्टीपल सेमेस्टर के सब मार्क्स हो और आप जिस सेमेस्टर का मार्क्स देखना चाहें उस सेमेस्टर के आपको दिख सके, ठीक है। उसको और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे बाद में कि कैसे और व्यू को अच्छा सा बनाया जा सकता है, ठीक, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जावा भी शायद बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आती होगी या बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आती होगी, तो स्प्रिंग बूट में हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। माईसीक्वल भी शायद बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं होंगे, तो माईसीक्वल भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, जो डेटाबेस बनाने के काम आएगा, ठीक है। HTML CSS शायद जल्दी आप लोग सीख जाएंगे, लेकिन उसके बाद जावा स्क्रिप्ट और स्प्रिंग बूट ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो उनको हम लोग अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट सुनने में थोड़ा सा लग रहा है ठीक टाइप का, या और चाहते हैं कि और कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए इसे? ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट है? जो लोग नए हैं, शायद हमने पिछली बार एकेडमिक से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन किया था SSTW में, लेकिन अब मेरे ख्याल से पिछली बार के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो अगर किसी को कोई और डाउट हो एकेडमिक से रिलेटेड, अभी हमारे पास आज के क्लास में टाइम है तो आप वो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट उसके एकेडमिक से रिलेटेड? आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है। सबको सब कुछ क्लियर है? सबको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सबको सब कुछ पता चल गया है? मेरी स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। पवन, संदीप, उत्कर्ष, अमन, हिमांशु, प्रणाल, ऋतिक, आशीष, आप लोग को सब कुछ पता है? सब लोग जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप थोड़ा सा अपना ये कैमरा ऑन करके और अच्छे से बोलिए एकदम।
हाँ बताइए। सर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पता लग गया है। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पता चल लग गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर इज लाइक, आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है? यस सर। अच्छा, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद क्या क्या चीज़ें पता चल गई, आप शेयर करेंगे अपने बैचमेट्स के साथ? यस सर, एग्जाम पैटर्न जैसे टीचर से इंटरेक्ट करने के लिए। हाँ, अच्छी बात है। और कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई अपना स्पिरिचुअलिटी का अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? आपका शायद सबका डिवाइस हो चुका है, तो कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? संदीप, आप अपना माइक ऑन करके, कैमरा ऑन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी संदीप बताइए। यस सर, अभी तक आपने जब से सर मैं स्पिरिचुअलिटी अटेंड कर रहा हूँ सर, क्या नाम है, स्पिरिचुअल क्लासेस जी। यस सर। सर मुझे मतलब जब से मैं अटेंड कर रहा हूँ अपना स्पिरिचुअल क्लास, तो सर मतलब माइंड वाइंड सर थोड़ा कंसंट्रेट हो रहा है। पहले था सर क्या नाम है, इधर उधर मतलब ज्यादा मतलब होता था। तो इस समय सर मतलब मैं चैंटिंग बहुत करता हूँ सर, अराउंड मतलब 6 टाइम कर लेता हूँ। तो सर माइंड वाइंड अब सर थोड़ा मतलब कंसंट्रेट होने लगा है, नहीं तो पहले अजीब अजीब सा होता था। और सर मतलब बहुत चीजें भी मतलब अभी सर मैं क्या नाम है, जो माई आश्रय सर जो है क्या अमोगलीला पर, उनका सर मैं वो मद भागवत भी अटेंड कर रहा हूँ। और सर मतलब उनका भी मतलब जो था डिवाइस तो सर पढ़ा भी चुके हैं, और फिर से मतलब यूट्यूब में एक चैनल है तो वहाँ से अटेंड कर रहा हूँ। ओके। जी। एक्चुअल में जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में आना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे हम चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में जब बिल्कुल स्टार्ट रहता है तो हम सबके लिए अच्छा रहता है कि हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक नॉर्मल वर्ड्स ना। लेकिन जब हम चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम खुद एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस अब सबके लिए ही अलग होता है। पता नहीं चलता है कि कैसे वो मंत्रा हमारे अंदर जाके काम कर रहा है, लेकिन वो एकदम ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस है। वन थिंग इज लाइक कि जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो हमने बचपन से सुना होता है कि हमें गीता पढ़नी चाहिए। स्कूल में भी कुछ कुछ चैप्टर्स में हिंदी में संस्कृत में रहता है, तो एवरीबडी इज लाइक गीता पढ़नी है, गीता सिखाओ इस टाइप का। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करेंगे तो आप जानेंगे कि भगवत गीता इज लाइक वेरी मच हायर फिलोसफी, है ना, डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड। तो और उसके लिए भी उन्होंने वो भी बताई अर्जुना को, विच इज आई भक्तों से भी सखा चेती, यानी कि अर्जुना को भी भगवान ने क्यों बताई? भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त भी हो और फ्रेंड भी हो, यू आर माई डियर फ्रेंड एंड डिवोटी। तो अर्जुना जैसी कॉम्पिटेंस होने के बाद भगवान ने डायरेक्ट अर्जुन को समझाई। तो हमें भी वही पाथ फॉलो करना चाहिए कि पहले हमें धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए डिवोटीज के गाइडेंस में, एंड देन फिर हमें हायर फिलोसफी को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, समझना स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली 5th क्लास से सीधे कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हमें बीच का भी समझ में नहीं आएगा और कैलकुलस भी चली जाएगी। तो इसलिए बेसिक चीज से गाइडेंस लेते हुए सीखेंगे, तब धीरे धीरे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? उत्कर्ष। हाँ, आप अपना कैमरा ऑन करके शेयर कर सकते हैं, तब आपके फ्रेंड्स हैं। अच्छा, आपका क्या माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या?
बहुत आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो अभी इलाहाबाद वाले वर्कशॉप में भी थे, वहां पर भी रह रहे थे 1 वीक तक, तो वहां का कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहे। अमित शायद वहां पर थे। अमित, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे वहां का? अमन का माइक शायद म्यूट है। आप लोग क्लास को इंटरेक्टिव रखिएगा तभी आप लोग को चीजें समझ में आएंगी। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो मतलब मेरे सिखाने का कुछ फायदा नहीं होगा आप लोग को। Yes, sir. हाँ, Maybe I आपका can कैमरा share. ऑन है, आप बताइए। हाँ प्लीज शेयर। Yes, sir. सर इलाहाबाद में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एसोसिएशन क्या होता है, वो हमें एक्सपीरियंस करने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिवोटीज के बीच में रहना, एंड दैट मंगल आरती एंड चैंटिंग एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप, bathing, and then coming to the place where we chant, and then that was a very beautiful thing. And although हम लोग बहुत कम सो रहते हैं, like for 6 or 5.5 hours like that, but like our energy used to be so high, like it is morning chanting was like fuel to our system, that kind of thing. And especially also the प्रसादम also सबको अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो अभी तो घर पे लाइक इट इज कहना आसान है कि ये तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, ये तो ऐसे भी सीख सकते हैं, बट सर बिलीव मी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कि ऐसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते सो गए, या फिर कुछ और हो गया, या फिर मन ही नहीं किया, आधा वीडियो देखने के बाद फिर मन ही नहीं किया, पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, ऐसा लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। Because if anyone is publishing a lecture on a YouTube, so he have to be kind of official, and he will definitely not give so much examples as you are used to give. Like वो आपने समझाया अभी डिजाइन और आर्किटेक्चर वाला वो बिल्डिंग का, so that was very also very good. And also हम लोगों ने कीर्तन्स किए हैं साथ में, so that was also very interesting in Allahabad. फिर ऑल्सो हम लोगों ने अपना कॉलेज घूमा, दैट वाज अ वेरी मच गुड एक्सपीरियंस। हमने अब बहुत पास से अपना कॉलेज एक्सप्लोर किया। शायद ही जितने लोगों ने अभी इस साल एडमिशन लिया होगा, लाइक हम ही लोग होंगे जिन्होंने कॉलेज देखा है एक्चुअली में। सो पीपल आर ऑब्वियसली एनवियस ऑफ अस। अभी आप लोगों का नया हॉस्टल भी बन रहा है ना, बड़ा वाला जो साइड बन रहा है नारायणी की साइड। यस सर, यस सर, यस सर, बट वो शायद फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, वो शायद थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के लिए ऐसा कुछ। हाँ, वो जो पुराने हॉस्टल्स हैं जिसमें हम लोग रहते थे, टंडन, मालविया और तिलक वगैरह, तो उनके लिए है शायद। वो बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी हो गई। ये अच्छा, डांसिंग कीर्तन इन प्रसादम, दिस टू थिंग्स ना यू विल ऑलवेज रिमेंबर इन। यस सर, यस सर, like because we use dance and chant, and Mahaprasadam is like, Mahaprasadam का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि the Mahaprasadam that I had in voice and in temple, the same kind of food you will never have in any kind of place, no restaurant, nothing। अच्छे से अच्छे महंगी से महंगी जगह में भी आपको उतना अच्छा फूड कहीं पर नहीं मिलेगा, बिकॉज जो महाप्रसादम का टेस्ट होता है दैट इज अल्टीमेट। अभी हम लोग गौर पूर्णिमा थी होली के टाइम पे, एंड आई यूज्ड टू बी इन टेंपल इस्कॉन कानपुर। देन वी वर डिस्कसिंग विद अक्षय एंड विशाल दैट अगर हम लोग ओवर ईटिंग नहीं करने का डिसाइड कर लें, लेकिन व्हेन वी सिट फॉर महाप्रसादम तो वो सबसे पहले वही चीज छोड़ते कि ये कल से करेंगे, पहले अभी महाप्रसादम लेते हैं। तो दैट इज one thing that we always remember ki Mahaprasadam and dancing kirtan with devotees. Very good. आज के लिए हम क्लास रैप अप करते हैं यहीं पे, ठीक है? कल से हम व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। सर जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वेब डेवलपमेंट के लिए वो कौन सा करेंगे सर? जी अभी सॉफ्टवेयर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम टेक्स्ट एडिटर जो आपका नॉर्मल रहता है उसी पर हम इसको कर लेंगे, जो भी अभी हमारा बेसिक डेवलपमेंट होगा व्यू का। लेकिन जब हम ये बनाना शुरू करेंगे बैकएंड, तब उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। जो आपके पास बहुत सारे लोगों के पास नेटबीन्स इंस्टॉल है, तो हम नेटबीन्स का यूज कर लेंगे। या अगर आप इक्लिप्स इंस्टॉल करना चाहें तो आप अपने पास इक्लिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट बता दूंगा जो आपको अपने एंड पे इंस्टॉल करने रहेंगे, विच इज इक्लिप्स, नेटबीन्स, माईसीक्वल, वर्कबेंच, अगर आपको माईसीक्वल के साथ काम करना है। ठीक है, तो मैं वो सब आप लोग को बता दूंगा अच्छे से, जिससे कि आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उस। ठीक है, अभी आपको कल और परसों की क्लास के लिए किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके सर। कृष्णा। मैं आपके साथ एक चैट में शेयर कर देता हूँ एक टूल। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट करके एक रहता है, सबलाइम टेक्स्ट। अगर आप ये इंस्टॉल कर सकें, एक मिनट, ये अमित कुमार को चेक किया। हाँ रुके, सबलाइम टेक्स्ट, ये आप अगर अपने एंड पे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर थोड़ा सा क्या रहता है कि वो अच्छा नहीं दिखता है कोड, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट में क्या होता है कि आपको दिखता है कि ये अलग अलग टैग्स हैं और क्या हो रहा है। तो अगर ये किसी के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, बहुत आसान रहता है इसको इंस्टॉल करना, कुछ बस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना रहेगा और कुछ नहीं होगा ज़्यादा। तो आप ये कर लीजिएगा आज अपने सिस्टम में इंस्टॉल। ठीक है, ओके सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण।